السلام علیکم، میں ہوں محمد زبیر اور آج ہم بہت ہی اہم کمانڈس کے بارے میں سیکھیں گے۔ انتہائی آسان اور بہت ہی زیادہ مفید کمانڈس ہیں یہ، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر میں پہلی بات دہراؤں گا کہ جو بھی میں یہاں کر رہا ہوں اس کی پریکٹس ضرور کریں تاکہ یہ ساری کمانڈ آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ کس وقت کیا چیز کرنی ہے کوئی بھی چیز ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے جب دائرہ بنانا ہے تو اس دوران آپ یہ دیکھیے گا کہ جدھر ماؤس کو لے جاتے ہیں اس طرف کوئی دائرہ اپنی شیپ چینج کر رہا ہے۔ اگر آپ کنٹرول پکڑ لیں گے تو دائرہ ایک ہی شیپ میں بڑھے گا، مطلب اس کا پرپورشنل ریشو جو ہے وہ سیم ہوگا، 100% ہر طرف سے ہوگا وہ۔ اگر اس کے ساتھ ہی آپ کنٹرول کے ساتھ ہی اگر آپ خالی شیفٹ پکڑتے ہیں تو یہ دو جانب دائرہ بڑھے گا، اوپر نیچے یا دائیں بائیں۔ اگر اس کے ساتھ آپ کنٹرول بھی پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ دائرہ ہر طرف ایک جیسا بڑھے گا۔ ایک تو یہ کمانڈ ہوئی آپ کی۔ اب ہم چلتے ہیں ویلڈ کمانڈ کی طرف۔ وہ کیا کرتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ چیز بنا لی۔ اب اگر آپ اس کو ویلڈ کر کے اس کو 2-4 ڈپلیکیٹس کر لیں، ہم آپ کو اندازہ اچھے طریقے سے ہو سکے ان کا۔ کنٹرول آر، کنٹرول آر، کنٹرول آر پچھلی کمانڈ کو ریپیٹ کرنے کے لیے شارٹ کٹ ہے۔ دیکھیں، اس کو آپ جب سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے یہ دیکھیں، یہ اوپر یہ پہلے 1 2 3 یہ جو انتہائی مطلب اہم کمانڈس ہیں، تو سب سے پہلے یہ جو لیفٹ ہینڈ پہ بنا ہوا ہے یہ والا، یہ بٹن، یہ ویلڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو ویلڈ کے ساتھ ہی ٹرم ہے اور ٹرم کے ساتھ ایک اور فنکشن کا بٹن ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے کام کی طرف۔ یہاں پر آپ اوکے کلک کریں اسے، یہ دیکھیں۔ اب اگر آپ ٹرم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ فلائی آؤٹ مینیو میں ٹرم لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ٹرم کر دیں۔ ٹرم کرنے سے یہ ہوگا ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ سے کٹ جائے گا، جیسے یہ کٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں انٹرسیکٹ۔ انٹرسیکٹ سے کیا کرے گا کہ یہ جو درمیان کا پورشن ہے یہ آپ کا بن جائے گا۔ آپ اس کو الگ کر لیں یہاں سے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سمپلیفائی۔ سمپلیفائی میں بھی وہی اس کا فنکشن ہے جو کہ اس نے ٹرم میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کمانڈس ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کمانڈس کو یوز کہاں کیا جاتا ہے؟ جب بھی آپ کوئی بارڈر بناتے ہیں یا کسی بھی قسم کا گرافک بناتے ہیں تو یہ وہاں استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ نے ایک یہ بنایا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ رکھا یہاں پر اور اس طرف سے یہ رکھ دیا۔ آپ اس کو ویلڈ کر لیں، یہ دیکھیں یہ بادل نما چیز بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے بادل بنانے ہیں، اگر آپ نے یہاں ایک چیز میں آپ کو دکھا دوں، آپ اس کو پکڑ کے یہاں کنٹرول پکڑ کے آپ اس کو روٹیٹ کریں، پھر کلک کریں اور کنٹرول پکڑیں۔ پہلے کنٹرول پکڑنے کے بعد یہاں ماؤس کو بٹن دبا کے رکھیں اور اسے آپ اس طرح کر لیں۔ اب اس سب کو ویلڈ کریں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ گیئر نما چیز ایک بن گئی ہے اور اس کے درمیان میں ایک آپ دائرہ بنا لیں سینٹر میں اس کے، اور اس کو آپ بڑا کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کو ویلڈ کر لیں اس کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ ایک گیئر نما چیز بن گئی ہے۔ اب اس گیئر کے اندر ایک اور چھوٹا سا کام کریں کہ اس دائرے کو دوبارہ ڈالیں اس میں، یہ دیکھیں، اور ایک اور اس میں آپ دائرہ بنا لیں۔ یہ آپ کا گیئر بن گیا۔ اب اگر آپ نے اس کو گیئر کو 3D ٹچ میں دینا ہے، جیسے 3D میں بنا ہوتا ہے، تو ہلکا سا کام کریں آپ اس کو یہاں پر ڈپلیکیٹ کریں۔ ڈپلیکیٹ کرنے کے بعد اس کو بھی سلیکٹ کریں جو پریویس آئٹم ہے آپ کا، اور بلکہ اس سے پہلے ایک اور کام یہ کریں، یہاں پر آپ اس کو کریں کمبائن، یہاں اس کو کمبائن کر لیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک آبجیکٹ بن گیا۔ یہ ایک اور دائرہ بنا لیں اس کے درمیان میں اور اس کو سینٹرلائز کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی کمبائن کر لیں۔ یہ اب آپ اس کی ایک
कॉपी बनाएं यहाँ पर, इसमें कलर भर दें ये वाला और इसमें कलर भर दें ये वाला, और ये शार्प कलर इसलिए रख रहा हूँ कि आपको फर्क पता चल जाए इन दोनों में। अब आप इसको ब्लेंड करें, इफेक्ट में, ब्लेंड में, इसको अप्लाई। अब आप ये चीज़ देखिए कि ये ब्लेंड हो चुका है। अब जितने आप यहाँ से स्टेप बढ़ाएंगे इसमें, इस जगह से ये स्टेप हैं, इसके जितने स्टेप बढ़ाएंगे उतना ही ये बेहतर एक्यूरेट बनेगा ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं इस तरह है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे क्लिक करेंगे तो फिर ये इस तरह मूव करेगा, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं तो ये मूव करेगा, ठीक है जी, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट नहीं ये मूव हो रहा। अगर आप इसके सेंटर में पकड़ के क्लिक करेंगे तो ये फिर पूरा मूव होगा। अब आप इसको क्रीप कर दें, इसके यहाँ कर दें। अब देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ गया इसमें। अब आप इसकी अगर आउटलाइन नन कर दें तो ये कुछ इस तरह होगा, ये देखें। इसको मूव करें, इस कमांड के साथ खेलें, अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करें। ये ब्लेंड की कमांड बड़ी बैकग्राउंड वगैरह बनाने में बहुत काम आती है। और इसके बाद हम चलते हैं फ्लावर बनाने की तरफ, छोटा सा इसको डिलीट कर दें और यहाँ इसको। इससे पहले मैं एक आपको चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग मतलब तेज़ी से काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता ये किस तरह सेंट्रलाइज हुई है कोई भी चीज़, ठीक है। अब देखिए ये दो आइटम है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक यहाँ पड़ा है और एक यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको आप येलो कर लें, थोड़ा छोटा भी कर लें। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन वाला दायरा जो है ना इस लीफ के अंदर सेंट्रलाइज आ जाए। तो उसका बहुत आसान तरीका है कि जिस चीज़ को आपने मूव करना है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, जिस चीज़ के रेफरेंस से आपने अलाइन करना है उसको बाद में पकड़ेंगे। शिफ्ट दबाएं और इसको सिलेक्ट कर लें। अब अगर आपने हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है तो आपको सी दबाना होगा, अगर वर्टिकल अलाइन करना है तो फिर आपको ई दबाना होगा। अगर आपने वर्टिकल और सेंट्रल हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइन करने हैं तो फिर आपको सी और ई दोनों प्रेस करने होंगे। चलते हैं, देखें ये हमने सी दबाया, इसने हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया, ये ई दबाया, ये उसने वर्टिकल अलाइन कर दिया। अब अगर खाली ई दबाते हैं तो यहाँ पर उसको वर्टिकल अलाइन कर देगा। अब अगर आप सी दबाएं तो सेंटर में आ जाएगा उसके, ये हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गया, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखें, अब एक चीज ये बनी है, यहाँ क्लिक करें और इसको क्लिक करके और यहाँ आप इसको कर दें ट्रिम। ट्रिम करने से इस रेड पत्ते के अंदर सुराख हो चुका है, ये देख रहे हैं आप, ये। अब आप इसको रिपीट करें, रोटेट करें मुख्तलिफ एंगल्स में। हम एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे जिसमें हम वॉल क्लॉक बनाएंगे, वॉच बनाएंगे, तो उसमें ये चीज़ बहुत इस्तेमाल होगी, वहाँ आपको इससे ज़्यादा बेहतर इसको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अब आप इसको एक और दफ़ा क्लिक करें और ये आपका पॉइंट है, इसको मूव करके आप यहाँ पर ले जाएं। इस दौरान आप कंट्रोल का बटन दबा के रखें, अगर कंट्रोल का बटन नहीं दबाएंगे तो वो परफेक्टली इस कोने पर नहीं स्नैप करेगा, इधर उधर मतलब होगा, लिहाजा आप कंट्रोल पकड़ के रखें साथ। अब जब ये चीज़ रोटेट करेगी तो वो इसके इर्द गिर्द रोटेट करेगी, ये देख रहे हैं, अब इस तरह रोटेट करेगी। लिहाजा आप यहाँ पर सिंपल एक क्लिक कर दें और अब आप इसको कंट्रोल आर की मदद से रिपीट करें कमांड को, ये लगे, ये आपकी कमांड रिपीट कमांड का काम हो गया। इसको एक और दफा रिपीट कर लें और ये इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह आप इसको रिपीट करें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, इन दोनों को पकड़ें, यहाँ क्लिक करें, ये इस तरह ये आपका फ्लावर बन गया, ठीक है। अब इसको भी आप सबको सिलेक्ट करके सिलेक्ट करें, कंट्रोल पकड़ें और यहाँ पर ये रख दिया आपका। अब इसकी डुप्लीकेट बनाएं। डुप्लीकेट बनाने के लिए जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है और यहाँ आके राइट क्लिक कर दिया मैंने। अब आप इन सबको वेल्ड करें, ये शेप बन गई। अब आपने इसको और इसको वेल्ड कर दिया, इसको और इसको वेल्ड कर दिया, इनके कलर भी चेंज कर दें, ये इस कलर के हो गए, ये ब्लू कलर के हो गए, और इसको आप ग्रीन कलर का करके वेल्ड कर लें। वेल्ड करने से ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट यकजान हो जाते हैं, वो एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसमें
दो सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं रहते, वो एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता। अब ये देखें ये भी बन गया, इसको भी अवॉइड कर लें, ठीक है जी। ये देखें यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लें, इसको भी थोड़ा छोटा कर लें, ये देखेंगे। अब एक और चीज जाते जाते आपको समझा दूं, वो ये है कि जब भी आप इसको रोटेट करते हैं, देखिए किसी भी चीज को अगर आपने किसी चीज के सराउंडिंग में रोटेट करना है तो उसका भी तरीका देख लें। देखिए ये एक दायरा है और ये छोटे छोटे दायरे हैं अलग से हमारे पास। मैं ये चाह रहा हूं कि इन दायरों को इसकी सराउंडिंग में रोटेट करूं, तो उसका तरीका ये है कि इसकी दो कॉपीज बनाएं, दोनों को सिलेक्ट करें, इफेक्ट में आए, ब्लेंड में आ जाए, अप्लाई कर दें यहाँ ब्लेंड। अब इसके 20 स्टेप्स हैं। अब आप स्टेप चेंज करें ज़रा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए। आप स्टेप चेंज करें, बढ़ाएं स्टेप, देखें ये देखिए इसमें इनकी तादाद ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ से हम 100 करें, इसकी तादाद ज़्यादा और बढ़ गई है। आप इसको कर लें 6, ठीक है। 6 नंबर ले लिया आपने इसके, और इसको अगेन छोटा कर लें कोने से पकड़ के। अब यहाँ पर एक पाथ की कमांड दी हुई है, पाथ सेलेक्ट करें, न्यू पाथ, और अब आपने जिसके गिर्द इनको सराउंड करवाना है या मूव प्लेस करना है वहां सेलेक्ट कर लें, इसको अप्लाई कर दें इसको। ये देखें अब ये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करें रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और उसके अलावा आप ब्लेंड अलोंग फुल पाथ अप्लाई कर दें। ये देखें अब यहां से जितने आप स्टेप बढ़ाएंगे उतनी इनकी तादाद बढ़ती रहेगी। ये देखा आपने। इसी तरह अगर आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और वो हम इसके सराउंड में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एक स्लेट पकड़ा, उसको कलर करें और इसका भी ब्लेंड करें। ब्लेंड में आप इसको येलो कर दें और इन दोनों को आप अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर आए आप न्यू पाथ, न्यू पाथ में आने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, फिर अप्लाई करना है। अब ये इस पर हो चुका है, ठीक है। रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर खाली ब्लेंड अलाइन अलोंग फुल पाथ, ये देखें अब ये हो चुका है। अब अपनी शेप, आपकी जिस शेप पे आपने उसको अलाइन किया, उसको जिस तरह मूव करेंगे ये इसी तरह उसी हिसाब से मूव होते रहेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये देखें उसको मूव करें और ये देखें इसके स्टेप बढ़ा लें, हंड्रेड स्टेप्स करें। अभी देख रहे हैं इसकी आउटलाइन रन कर दें, ये देखें यहाँ फिर स्टेप कम कर लें। ये उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपकी। आप इनको प्रैक्टिस करें। ये तमाम चीज़ें जो है प्रैक्टिस की हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी इंशाल्लाह ताला, और आपका जहन भी खुलेगा और आपको इसमें आसानी भी महसूस होगी। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर काम का आपको मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। चलें ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से वो कमांड समझा सकूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।